ओके बच्चों, वेरी गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? So I welcome all of you to the very first session of this wonderful program uh, for the preparation of this entrance exam, and I welcome all of you to Miracles Where Magic Happens. ऐसा डायलेक्ट टाइप का लगता है, Miracles Where Magic Happens. ये क्या है? So there is a story behind. I firmly believe that magic does happen in life, but it happens to those who believe in it. If you don't believe in magic, it won't happen to you. It happens to those who believe in it. This is the one of the principles I firmly follow. So you know that when you are preparing for this entrance exam, there are four possible areas where you have to gain mastery over. One is your English language. One is your quantitative areas, that is your mathematics, at least up to 10th class. Third is your reasoning abilities, that is data interpretation and logical reasoning. And fourth is your general awareness. Okay, because in some of the exams you might face GK as a section, in very few of the exams rather. And at the time of your interview and group discussion and VAT written ability test, etc., essay writing kind of a test is conducted, their general awareness will come into picture. Okay, and apart from these four areas, which I would refer them as aptitudinal areas, these four areas, they try to check your IQ level, your language skills, your quantitative and reasoning skills, and your general awareness. And there would be one more fifth dimension that would be tested, and that is your personality and your communication skills. Okay, once you have performed very well at a certain level in the written test, then you will be getting a call letter for group discussion and interview. At that stage, they will try to test you what kind of a personality are you, whether you are a you will be able to connect well with your team members or not. So they will try to certainly check your interpersonal skills, your English communication skills. Are you getting my point? And that would make you a perfect fit, a combination of IQ and EQ, a combination of intelligent quotient plus emotional quotient. EQ मतलब आप लोगों के साथ कितने अच्छे से तालमेल बिठा के काम कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज चाहे आप एक बहुत बड़ी कंपनी के हाई फ्लाइंग मैनेजर बनो, या आप कोई डॉक्टर या कोई ऐसा सोलो साइंटिस्ट ही क्यों ना बन जाओ. ठीक है, एक साइंटिस्ट को भी अपनी टीम से कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ता है. एपीजे कलाम ऐसा नहीं कि एक अकेले कमरे में लेके मिसाइल बना दी. अरे भाई, साइंटिस्टों को भी कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो इवन दे गॉट टू बी गुड टीम प्लेयर्स. इवन डॉक्टर्स, दे कैन नॉट ऑपरेट अलोन. दे नीड अ टीम who will assist that doctor or a surgeon. So even doctors need to be good at interpersonal skills. Are you getting my point? So essentially, whatever entrance exams you go for, they will try to test you. As far as the written test is concerned, they will try to test your IQ. वो आपका IQ टेस्ट करेंगे through the written test, and once you have cleared your written test, they will check your EQ, emotional quotient, and your communication skills, etc. ये broad picture clear है दोस्तों आपको? तो आपका जो ये जो रिटन टेस्ट होने वाला है, ये आपका IQ टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू, जीडी एटसेट्रा होगा. वो ब्रॉडली उसको मैं कैटेगराइज कर देता हूं, वो EQ टेस्ट होगा. ठीक है, दैट इज द रीजन कि कई बच्चे बहुत अच्छा रिटन टेस्ट में लाने के बाद भी दे फेल टू मेक इट इन द फाइनल स्टेजेस, दे गेट रिजेक्टेड. बिकॉज हो सकता है कंसिस्टेंटली वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज डिस्प्ले कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम पे, या इंटरव्यू के टाइम पे उनसे बात करके लगे कि बहुत ही एरोगेंट बंदा है, टीम में काम नहीं कर सकता, एटसेट्रा. ठीक है, ऑल डन. अब हम आते हैं भाई, ये आईक्यू की हमने बात की है, तो हमको पता ही है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में एक लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर होगा, मैथ्स होगा जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, DILR होगा, एक जीके कहीं कहीं कभी कभार होता है, जीके ज्यादा जगह नहीं आता है, और उसके बाद ये तो अपना हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स और वो वाला सब एरिया. ठीक है, अब अपन बात करते हैं लैंग्वेज की. तो आई एम श्याम वर्मा एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज एरियाज. ठीक है, नाउ विद इन लैंग्वेज व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यू नीड टू लर्न.
लैंग्वेज में एक आता है वोकैबलरी, एक आता है ग्रामर, एक आता है आपका आरसी, और एक आता है यूसेज। ये चार पार्ट्स में ब्रॉडली हम डिवाइड कर लेते हैं लैंग्वेज को। एक होता है प्योर ग्रामर, आपको पढ़नी है, एग्जाम में ग्रामर आ सकती है। एक होता है प्योर वोकैबलरी, पढ़नी है, एग्जाम में वोकैब आ सकती है। एक होता है आरसी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेजेस, जैसे आपके अभी परसों के टेस्ट में भी था। और एक होता है यूसेज, जैसे कि परसों के टेस्ट पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक रहे होंगे, कुछ रिप्लेस द अंडरलाइन टाइप के कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, एक्सेट्रा। पैरा जंबल टाइप के रहे होंगे कि चार स्टेटमेंट से आपको उसको अरेंज करना है एक ऑर्डर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो अब आज का सेशन जो पर्टिकुलरली डिवोटेड है, दैट इज अबाउट वोकैबुलरी। सो इट सेज your best bet for lifetime. Vocabulary is your best bet for lifetime. Why it is written here? Now, before I begin with my session, I would like to quickly take a head count from all of you. How many of you in the classroom would like to become such people in life who would be categorized as a phenomenal orator, a person who speaks very effectively, a person who is a very good public speaker, a person who has very good abilities to interact with people, to deliver extempore, to deliver, to speak very eloquently, to art. You would like to be a person who would be able to articulate his ideas very emphatically, very effectively. How many of you would like to be categorized as that kind of a person? Okay, good enough. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं खड़ा किया तो लगता है इसको बनना नहीं है पब्लिक स्पीकर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब मैं कभी भी ना किसी भी व्यक्ति को, मैं हर चीज में मतलब ग्रीन सिग्नल देने वाला बंदा हूँ। किसी भी चीज में मैं नैरो, मतलब नैरो डाउन करके किसी को जज नहीं करता हूँ कि अच्छा तुमको पब्लिक स्पीकर नहीं बनना, क्यों नहीं बनना भाई, क्यों नहीं बनना चाहते हो तुम। ऐसा नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। और मजे की बात तो ये है कि मैं अपने लाइफ में बहुत डरता था पब्लिक स्पीकिंग से, और बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का था क्या, अभी भी हुई वैसे, मेरी बेसिक तो पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट वाली ही है। बट इंसिडेंटली मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहां मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि सर मुझे तो बातें करना पसंद नहीं है, या मैं बहुत ज्यादा आई डोंट रीच आउट टू पीपल एंड टॉक टू पीपल, आई एम नॉट गुड एट इट। तो क्या एमबीए मेरे लिए बना है? ठीक है, या क्या मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ? आप सर्टेनली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोई टिपिफिकेशन नहीं, कोई ऐसा थंब रूल जैसा नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, अच्छा ऑरेटर बनना है, उनके लिए बिल्कुल आज का सेशन बना हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई। तो एनीवे, योर बेस्ट बेट फॉर लाइफ टाइम, बड़ा स्टेटमेंट है ये। मैंने ये नहीं लिखा योर बेस्ट बेट फॉर कैट या आईपी मैट या ऐसा कुछ एग्जाम का नाम नहीं लिखा है। ऐसा इसलिए बच्चों, बिकॉज when you set out to learn vocabulary, so your perspective, your vision, uh, your viewpoint to learn vocabulary from purely an exam point of view would not be a justified, perspective. You should carry a long term view about vocabulary. It is not just going to impact your examination, it is going to impact your entire life till you exist. If you are going to survive and live for 100 years, then it will impact you till your last breath. बड़ी बात बोली है मैंने। मतलब वोकैबुलरी जो है एग्जाम क्रैक करना है उसलिए पढ़ लेता हूं मैं, बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। वोकैबुलरी यार पढ़ ही लेता हूँ, लाइफ में काम आएगी, क्योंकि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो किसी से मुझे इंग्लिश में बात करनी है तो मैं कैसे करूंगा, या मुझे नहीं बात करनी, मैं तो हिंदी में बात करता हूँ, अरे भाई उसको हिंदी नहीं आती है, वो साउथ इंडियन है, तो वो तो इंग्लिश में बोलेगा ना, तो मैं कैसे समझूंगा, हाउ विल आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज स्पीकिंग। ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। तो vocabulary इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच विल कनेक्ट यू विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चाहे आप इंडिया में बैठ के जूम कॉल पे फॉरेन क्लाइंट्स को आप हैंडल कर रहे हो, तो उस स्थिति में भी आपको वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। आप एमबीए कॉलेज जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, तो अल्टीमेटली योर प्रोफेसर्स विल टॉक टू यू इन इंग्लिश। वन प्रोफेसर फ्रॉम फॉरेन origin or from abroad might come and deliver a lecture,
Now, if you are weak at vocabulary, how will you be able to comprehend and understand what your professor is teaching you? Are you getting my point, guys? अरे you would not be able to understand head and tail. अब वहां पे यार vocabulary का कोर्स थोड़े करोगे यार, यहाँ पे miracles में करो ये मेहनत vocabulary learn करने की, so that you don't struggle in your MBA classrooms, so that you don't fail to misunderstand what professors are teaching, so that you are able to finish your assignment very fast, because आपको आरसी तो आएगा एग्जाम में, और लाइफ में आरसी का बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। कैसे इंपॉर्टेंस होती है भाई? आपके जीवन में बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। आपकी वोकैबुलरी कमजोर होगी तो आप पढ़ोगे कैसे? You will get stuck in every next line, third line, fifth line, 10th line. You will keep getting stuck because you don't know the meaning of those words. So not only it will retard your reading speed, in fact, if you're not good at vocabulary, you will end up misunderstanding the stuff. ठीक है? तो जैसे अभी जजेस वगैरह के नीट स्कैम हो गया या कोई भी चीज हो गई, तो बड़े बड़े वर्डिक्ट्स आते हैं। तो लॉयर्स या मैनेजर्स, इनके प्रोफेशन में आपको बहुत सारी चीजें, मोटी मोटी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके बॉस ने बोला कि यार आर कंपनी इज प्लानिंग टू डू अ वेंचर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फील्ड, सो हियर इज अ लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम नेस्कॉम, please go through it and make a presentation boss, I'll take your presentation at 5 p.m. वो तो बोल के चला गया 11 बजे कि शाम को मिलता हूँ 5 बजे, पीपीटी बना के रखना, ठीक है? अपन को ये नेस्कॉम की इतनी मोटी, मतलब 200 पन्ने की रिपोर्ट है, अब तुमको पढ़ना है उसको, और ना केवल पढ़ना है बल्कि पीपीटी भी बनाना है उसका, और शाम के 5 बजे के अंदर बन जाना चाहिए। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ। अब आप नेस्कॉम की रिपोर्ट लेके बैठे हैं, वहां पे जैसे ही आपने देखा, आपने एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि वर्ल्ड ओवर प्रोफेशनल्स आर जेन्युफ्लेक्टिंग बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो अब जेन्युफ्लेक्ट, ये वर्ड लिखा हुआ था वहां पे, जेन्युफ्लेक्ट। तो आप सोचोगे क्या है भाई जेन्युफ्लेक्ट, फिर डिक्शनरी डिक करोगे वहां पे, अच्छा अच्छा, जेन्युफ्लेक्ट मतलब घुटने टेक देना, घुटनों के बल बैठ जाना, ऐसा कुछ। फिर एक लाइन में कुछ लिखा होगा, कुछ और वर्ड लिखा होगा, फिर कुछ लिखा होगा, फिर कुछ लिखा होगा, तो आप तो डिक्शनरी डिक करोगे। तो वहां पे आपका बॉस आ जाएगा, बोलेगा हाँ बेटा प्रेजेंटेशन बन गया, आप बोलेगे 5वें पेज पे हूँ अभी, इतने सारे वर्ड्स मैंने निकाले हैं। तो ये लाइफ थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लिए आप, ठीक है? तो बेटा वोकैबुलरी तो ऐसी गले की फांस है कि चाहे तुम मैथ्स ना पढ़ो अभी, चाहे रीजनिंग मत पढ़ो, चाहे तुम मतलब कुछ मत पढ़ो, अरे तुम एमबीए ही मत करो, मिरेकल्स ज्वाइन मत करो, अरे इंसान तो हो, इस दुनिया में ही तो जियोगे मरोगे, तो भाई वोकैबुलरी तुम्हारा गला दबा के रहेगी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी है। और मुझे बिलीव नहीं करते हो तो अब मैं न्यूज़पेपर, बेटा न्यूज़पेपर उठा दो, अभी बताता हूँ तुम्हारा ये गला कैसे दबाएगी वोकैबुलरी। भाई ये रहा न्यूज़पेपर, एकदम रैंडमली, ये किसी भी दिन का होगा, पुराना न्यूज़पेपर हो सकता है। अब यहाँ पे एक ऐसी छपी हुई है, मुंबई इलेक्शन ऑफिशियल रिफ्यूट्स, मुंबई इलेक्शन ऑफिशियल रिफ्यूट्स मीडिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? REFUTE, रिफ्यूट, एनी आइडिया? हाँ, एक मिनट यार, गॉड हैज अनफॉर्चुनेटली गिवन मी 2 इयर्स, एक एक हाथ खड़ा करो फिर मैं मौका दूंगा। हाँ बताओ। हाँ, डिनाई करना, वेरी गुड वेरी गुड। वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट अ पब्लिक रैप, वॉइस ऑफ डिसेंट, DISSENT, डिसेंट का मतलब क्या, कितने लोगों को पता है? ठीक है, यस, एक ही व्यक्ति बताइए।
नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली डिफरेंट ओपिनियन तो नहीं बोल सकते। और कोई गैस? डिसेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। DISSENT, डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तुम लोग खराब हो, मैं तुम्हारी पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो वॉइस ऑफ डिसेंट का मतलब होता है वॉइस ऑफ ए डिससेटिस्फाइड पर्सन। आर यू गेटिंग इट? जो नाखुश है, असंतुष्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि देखो इस तरीके की यहाँ पे बहुत सारे मतलब हेडलाइंस और ये वो अंदर पढ़ना चालू करोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स मिलेंगे। तो बेटा वोकैबुलरी तो तुम भले ही MBA एंट्रेंस ही छोड़ दो, मिरेकल्स मत ज्वाइन करो, वोकैबुलरी भगवान के लिए कर लेना ठीक। और वो इसी उम्र में कर लेना कॉलेज में। क्योंकि फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, कोई बात कर रहा है तो थोड़ी डिक्शनरी दिख करके सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग समझ लेता हूँ। मतलब आप अभी मैं आपको ये बोलने वाला हूँ, मतलब आपके मतलब आपकी एंट्रेंस प्रेप का इंटीग्रेटेड पार्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट यू हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट। You got to read newspaper every day, and it is going to be a boring task. I will ask you to read novels, books, because that is the only way you can develop your reading speed. ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बोरिंग टास्क हो सकता है आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग खराब होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड समझ में नहीं आएंगे ना। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कई सारे वर्ड समझ में नहीं आएंगे, तो यू विल फील वेरी इरिटेटेड। मतलब मुझे याद है मैं जब करता था तो मुझे लगता था क्या यार दिमाग खराब, हिंदी जैसा क्यों नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कट 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 पूरा हिंदी जैसा समझ में आ जाए। आई रियली वांटेड दैट वे। आप भी ऐसा चाहते होगे, लेकिन रोड ब्लॉक्स आर देयर। मतलब वोकैबुलरी एक्ट्स एज अ रोड ब्लॉक, इट एक्ट्स एज ए स्पीड ब्रेकर। आप जैसी फर्राटेदार पढ़ते हो फिर एक वर्ड आ जाता है, इट रिटार्ड्स योर स्पीड। फिर डिक्शनरी दिख करके उसको देखो, फिर आगे बढ़ोगे, फिर एक वर्ड आ जाएगा। तो वोकैबुलरी इज अ थिंग विच यू हैव टू रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है, ये आपको तंग करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक, पैरा जम्बल्ड, किसी भी टाइप की ये जो इंग्लिश यूसेज, ग्रामर, हर जगह पे वोकैबुलरी आपके आड़े हाथों बिल्कुल आपको परेशान कर देगी, अच्छा खासा परेशान कर देगी। ठीक है। तो vocabulary has to be your best bet, not only for exam but for your lifetime also. And when you want to become a good public speaker, if you have a good set of vocabulary words, you can always play with words according to the situation. ठीक है। तो ये आपको एक कटिंग एज देता है ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। सो दैट इज व्हाट आई कैन श्योरली टेल यू। ठीक है। दिस इज समथिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ vocabulary cannot be overlooked, cannot be ignored, cannot be underestimated। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो आपने ऑब्जर्व किया मैंने एक ही सेंटेंस को चार वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज किए। यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट इट, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, यू कैन नॉट ओवरलुक इट। तो ये मैंने चार वर्ड्स यूज कर दिए, बहुत सिंपल वर्ड थे, बट इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट व्हेन यू स्पीक। एंड आपकी एसे राइटिंग भी होगी। ऐसे राइटिंग आता है आजकल, ये आने लगा है ना, IIM वगैरह में आपके सिलेक्शन में इंटरव्यू के साथ ऐसे राइटिंग आता है। GD आता था पहले, ग्रुप डिस्कशन, वो स्क्रैप कर दिया, आजकल GDs नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपकी एबिलिटी टू राइट भी काफी इंप्रूव हो जाएगी। और आप में से यदि कोई क्रिएटिव साइड जाना चाहता है, डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, या एड मेकिंग, या फिल्म मेकिंग, इस टाइप का, तो उनके लिए भी वोकैबुलरी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, हमारे कंपनी में जितने भी क्रिएटिव्स बनते हैं, जैसे आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइएगा, तो जितने भी चाहे पोस्ट होंगे, चाहे वीडियो होंगे, चाहे रील होगी, उसकी पूरी कॉपी राइटिंग मैं खुद करता हूँ। डिजाइनिंग में मैं खुद करता हूँ, वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी कर देता हूँ, ऑल्दो असिस्टेंट्स भी हैं, बट कॉपी राइटिंग तो पूरी मैं ही करता हूँ। तो बिकॉज आई हैव ए गुड, एक्सेप्शनली गुड कमांड ओवर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड हिंदी ऑल्सो, so that makes me a, you know, a killer combination for a, ad agency। ठीक है। तो my colleagues used to tell me कि श्याम sir, had you not been a teacher and an entrepreneur and educationist, you would have been an ad agency owner। ठीक है, मैं कोई ad agency रन कर रहा होता, बिकॉज मुझे
सेंस है क्रिएटिविटी वाली चीज़ों का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मीट द क्रैक आई एम क्रैकर वो सब भी था, तो मैंने ही डिज़ाइन किया है कैनवा के ऊपर। ठीक है, तो आजकल मैं थोड़ा कैनवा हैवी हो गया हूँ। वैसे मैं कोरल ड्रॉ और ये सब भी जानता हूँ ठीक ठाक। ठीक है, फोटोशॉप एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया है कि किस तरीके से हेल्प करता है। अब देखो वोकैबुलरी लर्न करने के मैं आपको 11 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, 11 गोल्डन रूल्स फॉर वोकैबुलरी। ठीक है, ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है। अगेन सिर्फ एग्जाम क्रैक कराना ये मेरा उद्देश्य आपका बिल्कुल नहीं है। आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माय स्टूडेंट इनटू अ लाइफ टाइम प्रोफेशनल, अ वेरी वेरी अनबीटेबल 24 कैरेट प्रोफेशनल। ओके, चलो, तो आर यू रेडी टू लर्न दोस 11 गोल्डन रूल्स फॉर वोकैबुलरी गाइस? ठीक है, एक बहुत ही पैरोकियल माइंडसेट तो होता, मैं बोलता बच्चों ये किताब रट लो, बस यही है यार, कुछ नहीं, यही सत्य है। भाई कैसे कर लो, मतलब एक शब्द को लर्न करने के हजार उसके नुआंसेस हैं, बारीकियां हैं जो आपको आनी चाहिए। तो मैं फटाफट फटाफट इसकी पॉइंट्स को आपको नोट करता हूँ, आपने इसका स्नैप ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप भले ही एक नट शेल में इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, आप नोट्स भी बना लीजिएगा। इट्स ऑलवेज गुड कि आप नोट्स बनाएं। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। यू हैव टू फॉल इन लव विद न्यूज़पेपर। ठीक है, एंड नोट डाउन 5 वर्ड्स डेली इन योर कॉपी विद डेट्स। कॉपी आप बनाएंगे और वहां पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आप तारीख डाल देंगे कि आज 22 जून 2024 है। फिर वहाँ सीरियल नंबर डालेंगे, वहाँ पे आप डालेंगे जेन्यूफ्लेक्ट टू टू बेंड डाउन, ऐसा कुछ मीनिंग है। और कोई आपको सिनोनिम मिल गया तो आप सिनोनिम्स भी लिख देंगे और आप वो सेंटेंस लिख देंगे जिस कंटेक्स्ट में वो आया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखोगे, फिर कोई वर्ड आया तो उसका भी वही वर्ड ब्रैकेट में हो सकता है एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग लिख दिया, कुछ सिनोनिम्स लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया। एकदम टिपिकल यही होगा फॉर्मेट। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले लिखोगे ब्रैकेट में, नाउन है प्रोनाउन है क्या है, मीनिंग लिखोगे, सिनोनिम्स लिखोगे और उसके बाद सेंटेंस लिखोगे। एकदम फिक्स है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम, सेंटेंस, बस इस ऑर्डर में आप करते जाओगे। मान लो अब 23 तारीख आ गई, 3 वर्ड लिखे, 23 तारीख को आपने 23 जून 24 ये लिख दिया, और यहाँ पे इसी को कंटिन्यू करोगे, इसी सीरियल ऑर्डर को। ये बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो कल भी आपकी क्लास है, कल 11:30 बजे मैथ्स की क्लास है आपकी। तो कल यदि मैं आपकी कॉपी चेक करूं तो मुझको कम से कम 3 वर्ड आपकी कॉपी पे दिख जाने चाहिए। आज ही जाके एक कॉपी बना लेना, एक फ्रेश कॉपी बनाना अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, क्योंकि ये बुक, ये जो कॉपी है, इट विल बी यूज्ड बाय यू फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या कौन से पेज पढ़ना है, सबका अपना इंपॉर्टेंस होता है। मैं बहुत अच्छा एक सेशन लेता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ओरिएंटेशन लेक्चर। ये वोकैबुलरी ओरिएंटेशन है, वो अपने आप में एक पूरा साइंस है। हाउ टू रीड, इट्स एन आर्ट एंड अ साइंस। तो वो अपन उस दिन डीप में डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि इसमें कौन से पेज पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या क्या और पढ़ना है, वो सब आई विल टेल यू लेटर। अभी आप ये समझ गए न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे वर्ड्स जो समझ में नहीं आएंगे आपको डेली लिखना है। कितने वर्ड्स लिखने हैं डेली के? एक मिनट, हाँ हाँ चला गया। राइट, ये रहा। 5 वर्ड मैंने लिखे हैं, एज लेस एज 3 वर्ड भी हो सकते हैं। आप 3 वर्ड भी कर सकते हो, किसी किसी दिन आप नहीं कर पाए तो चलेगा, बट कोशिश करना कि आप डेली कम से कम 1 वर्ड तो करना है। अब आप बोलोगे अरे श्याम सर 1 वर्ड से अच्छा है मैं किसी किसी दिन 10 वर्ड एक साथ कर लूंगा।
5 कर लूंगा, व्हाई? एक्चुअली इट मेक्स योर हैबिट. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन helping you form your habit. Habits are a very powerful tool to transform your life. It is not motivation or inspiration that transforms one's life. I am telling you, it just happens for a moment or two. इंस्पिरेशन, किक स्टार्ट, यार मजा आ गया, आज वो यूट्यूब पे देख लिया, अरे यहाँ बच्चे आए थे, आईएम के, मजा आ गया. वो मजा वजा ना 1-2 दिन ही टिकता है बस. उसके बाद टिकाती है तुम्हारी हैबिट. तुमको चलाने वाली चीज है तुम्हारी हैबिट कैसी है. तो हैबिट बनाओ कि डेली यार मुझे करना है, मतलब करना है. भले एक वर्ड करूं, 2 वर्ड करूं, 5 वर्ड करूं, चलेगा, लेकिन डेली मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली उसमें से कुछ वर्ड निकाल के कॉपी में लिखने हैं, भले ही कम से कम एक वर्ड क्यों ना हो. आर यू देयर विथ मी ऑन दिस? आप समझ पा रहे हो उस इंटेंसिटी को जैसा मैं बता रहा हूँ? आर यू एब्सॉर्बिंग माई वर्ड्स इन द सेम इंटेंसिटी विथ विच आई एम डिलीवरिंग इट? यस और नो? बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, तो न्यूज़पेपर, एक गोल्डन रूल समझ में आ गया. दूसरा, मेक वोकैब हाउस योर पिलो. अब ये वोकैब हाउस क्या है? ये है आपका तकिया. मतलब इसको उतना ज्यादा, मतलब इट इज योर बडी. इसको हमेशा आपको साथ में रखना है. इस बुक को हमेशा अपने बैग में रखो. कॉलेज गए, कॉलेज में पढ़ो, स्कूल जहाँ जो भी आपका कोचिंग गए, कहीं पे भी गए, तो इसको हमेशा रखना है. कभी टाइम मिले तो जस्ट शक्ल देख लो, वर्ड वर्ड देख लो, ऐसा. तो वोकैब हाउस, इसका हाफ पेज बेयर मिनिमम कह रहा हूँ, बेयर मिनिमम. वैसे तो मैं बोलूँ तो और बहुत ज्यादा ही पढ़ना चाहिए. तो इसमें हाफ पेज मतलब एटलीस्ट इस साइड या इस साइड ऐसा, मतलब हाफ पेज. ठीक है, ये तो बेयर मिनिमम है. ठीक है, इसको, ये तो हम सेशंस क्लास में एक आध करेंगे, और कई सेशन करेंगे इसके ऊपर वोकैब पे बेस, तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कैसे करना है ऐसा. ठीक है, अभी आप ये समझ लो, ये वोकैब हाउस हाफ पेज तो आपको डेली करना ही है. Understand parts of speech for every word you learn. Now, this is a very important piece of advice. Whatever words that you learn, you should know which part of speech it is. Whether the word is noun or adjective or verb, adverb, what it is. It is very, very important. Why it is important, I will explain to you. Uh, let's consider, let's consider. अरे यार, पहले तो मैं, एक मिनट, ये कुछ पेजेस जो यहाँ पे आ गए ना, इसको मैं पहले, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ट्विटर हैज बीन बैंड आउटराइटली. क्या आप इस सेंटेंस का मीनिंग गेस कर सकते हो? ट्विटर बैन किया जा चुका है, ये तो समझ में आ रहा है. बस एक ही तो वर्ड है, शायद आपको नहीं पता होगा, आउटराइटली. मतलब ऐसा कुछ लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ. इस सेंटेंस का मतलब है ट्विटर हैज बीन बैंड कंप्लीटली. ठीक है, अब ये जिस भी बंदे ने ये सेंटेंस लिखा है, ट्विटर हैज बीन बैंड आउटराइटली, उसको ये पता नहीं था ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. आउटराइटली अपने आप में ही गलत वर्ड है. यहां पे वर्ड होना चाहिए था आउटराइट, नॉट आउटराइटली. एक्चुअली आउटराइट जो वर्ड होता है दोस्तों, ये होता है एडवर्ब. ये एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है. मैं अगेन एक दूसरा सेशन लूंगा कमिंग वीक में ही, जिसमें मैं आपकी मास्टरी कराऊंगा, डबल पीएचडी करवा दूंगा कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये होते कौन सी खेत की मूली है. मतलब इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड सेशन लूंगा. ठीक है, तो उस दिन आपको ये क्लियर हो जाएगा. अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि आउटराइटली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो इसका मतलब ही कंप्लीटली होता है. आउटराइट अपने आप में एक एडवर्ब है, उसका मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली. तो उसने क्या कर दिया, गलती से टोटली, कंप्लीटली, एलवाई वाली चीज उसने आउटराइटली में घुसा दी कि ट्विटर हैज बीन बैंड आउटराइटली. उसको बोलना चाहिए ट्विटर हैज बीन बैंड आउटराइट, क्योंकि आउटराइट का मतलब ही होता है कंप्लीटली. तो देर इज नो नीड टू एड एलवाई एडिशनली टू द वर्ड. ठीक है,
अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ट्विटर हैज बीन बैंड आउटराइट, ये एक वर्ड हो गया। एन आउटराइट बैन ऑन ट्विटर। अब यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है, मतलब इस तरीके यूज यूज हो रहा है, कंप्लीटली की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये यूज हो रहा है कंप्लीट। कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव एंड कंप्लीटली इज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो कैसे बैन हुआ? कंप्लीटली बैन हुआ। बैन इज ए वर्ब, तो वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला होता है एडवर्ब, और ये है नाउन। बैन, कैसा बैन? कंप्लीट बैन। तो ये है एडजेक्टिव। अभी समझ में नहीं आया हो तो टेंशन मत लो, उस दिन समझा दूंगा अच्छे से। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट इसका मतलब है, और इसका मतलब है कंप्लीटली। स्पेलिंग दोनों सेम है, पर यहाँ पे इसका मतलब कंप्लीटली निकल रहा है, यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है कंप्लीट। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछता हूँ, चलिए 3 क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। चूज द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस। He bore, he bear, he has borne all the responsibilities of his family. River has overflowed, river has overflown its bank. Cricket match was telecast live on Hotstar. Cricket match was broadcasted live on Hotstar. हम्म, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या आएगा? कितने लोग बोलते हैं ये आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू से बोर्ड? नो वन। वेयर? नो वन। हैज बॉर्न? ओके, वाओ, ऑल ऑफ यू आर राइट। गुड। तो आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, और ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बता सकते हो? अच्छा, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? अरे वाह, क्या बात है! मेरे को आज तक किसी ने क्लास में ना इसका सही जवाब नहीं दिया। आप पहले स्टूडेंट हो पिछले 4-5 साल का, बता सकता हूँ, जिसने इसके तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब मुझे सही बता दिए। ठीक है, क्लास में ईमानदारी से बताओ, किसी और को पता था क्या? बेयर, बोर, बोर्न? ओके, तो ये पहला देखो, बेयर कितना कॉमन वर्ड है, हमने बचपन से यूज किया। अरे मैं तुमको बियर नहीं कर सकता भाई, प्लीज जाओ यहाँ से। तो बेयर मतलब बर्दाश्त करना। तो बेयर जो वर्ड होता है, इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है बोर, और इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है बॉर्न। तो देखो, यहाँ पे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये बताइए, रिवर हैज ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोन इट्स बैंक। कितने लोग बोलते हैं ओवरफ्लोड? नो वन। ओवरफ्लोन? 1 2 3 4 5, क्या बात है, पूरी क्लास ने एक साथ जवाब दिया। गलत जवाब दिया है लेकिन ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब देखो, आपकी गाड़ी, एक कहावत सुनी होगी आपने, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, और वही आपके साथ हुआ है, आपकी नाव वहां डूब गई है जहां पानी ही नहीं था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, एक वर्ड होता है फ्लो, और एक वर्ड होता है फ्लाई। कितना सिंपल वर्ड है, फ्लो मतलब बहना, फ्लाई मतलब उड़ना, है ना? लेकिन आप इसके 3 फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बता पाए, धिक्कार है। सरदार बिल्कुल खुश नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके 3 फॉर्म्स क्या होते हैं? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये होता है। तो अब इसमें मैं ओवर भी लगा दूंगा, तो ओवरफ्लाई, ओवरफ्ली, ओवरफ्लोन, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। तो नदी जो है अपने किनारों से उफन गई नदी, बाढ़ आ रही है, तो ओवरफ्लो हो गई। तो ये होगा, रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक। अब वो उड़ थोड़े गई, तो ओवरफ्लोन तो हम इंडिगो एयरलाइंस के लिए बोलेंगे, इंडिगो एयरलाइंस हैज ओवरफ्लोन ताजमहल। ये ताजमहल है, इंडिगो एयरलाइंस हैज ओवरफ्लोन ताजमहल। ओवरफ्लोन मतलब ओवर
फ्लाई, उसके ऊपर से उड़ना, ओके, समथिंग लाइक दैट। ऑल द फ्लाइट्स आर बैंड टू ओवरफ्लाई ताजमहल। कई सारे ऐसे पब्लिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर से प्लेन का गुजरना बैन होता है, ठीक है, तो साइड से जाते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको ये नहीं पता था थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो देखो कहाँ गलती हो गई। क्रिकेट मैच वाज टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन हॉटस्टार, यहाँ पे क्या है, कितने लोग बोलते हैं टेलीकास्ट? नो वन सेज एनीथिंग। ब्रॉडकास्टेड, तो एंटायर क्लास हैज गॉन रॉन्ग अगेन, क्योंकि ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है बच्चों। टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये दोनों वर्ड ऐसे होते हैं जिनका तीनों फॉर्म में ईडी नहीं लगता। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो देखो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो वोकैबुलरी का जो भी वर्ड होता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले तो पता होना चाहिए, और यदि वर्ब है तो उसकी थ्री फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। वापस गोल्डन रूल्स पे आ जाते हैं। क्रिएट फनी पिक्चर ऑफ वर्ड्स वेन एवर पॉसिबल। फनी पिक्चर बनाइए वर्ड्स की जहां पे भी पॉसिबल हो सके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक कुछ वर्ड लेकर आया हूं यहाँ पे ना, मैं आपको 5 वर्ड लेके आया हूं, आप नोट कर लो इसको फटाफट। पहला वर्ड है एट्रोफी। प्रणव, तूने कॉपी भी नहीं निकाली, पेन भी नहीं निकाला, बेटा क्या है यार, पिक्चर देखने आया है क्या? एट्रोफी, गाइस मुझे बताएंगे इसका, यदि मीनिंग मालूम होगा तो बताएंगे विदाउट रेफरिंग टू गूगल। एट्रोफी, बच्चों एट्रोफी का मतलब इट्स ए नाउन, इसका मतलब होता है डी जनरेशन, डी जनरेशन या डीग्रेडेशन। डी जनरेशन डिग्रेडेशन, इसका मतलब होता है थोड़ा सा सड़ना गलना, आप बोल सकते हो। डी जनरेशन या डिग्रेडेशन का मतलब होता है कंटैमिनेट हो जाना, या सड़ना कह सकते हो, गलना कह सकते हो। नॉर्मली डिसयूज की वजह से, इस्तेमाल नहीं होने की वजह से ऐसा होना, हालांकि जरूरी नहीं है, नॉर्मली भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये है इसका मीनिंग एट्रोफी। इसका सेंटेंस एक बना देता हूं, जैसे आप बोल सकते हो एट्रोफी ऑफ कल्चरल वैल्यूज, एट्रोफी ऑफ एट्रोफी ऑफ कल्चरल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स, ऐसा कुछ सेंटेंस बना देता हूं। आप सेंटेंस का मीनिंग समझ गए? कुछ जो हमारी पारंपरिक मूल्य है ना, सिद्धांत है, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, माता पिता की सेवा करो, या छोटों को प्यार दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो जो सांस्कृतिक मूल्य है, सिद्धांत है, वो उनका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, या कह लो कि वो गायब हो रही है। एट्रोफी ऑफ इंडियन कल्चरल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स, आप सेंटेंस से रिलेट कर पा रहे हो? सेंटेंस का यूसेज भी, एट्रोफी का यूसेज भी समझ में आ गया होगा, एज ए नाउन यूज हो रहा है। अब लेट्स कंसिडर, बहुत दिन तक के आपने वर्ड नहीं रिवाइज किया, नहीं देखा, तो आप चांसेस है कि भूल जाओगे इसका मीनिंग। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक ऐसी ट्रॉफी बना देता हूँ, इसको याद रखने की एक फनी हास्यप्रद एक ट्रिक आपको बताता हूँ। इमेजिन करिए, ट्रॉफी सुनने से ट्रॉफी तो सामने आ ही जाएगी आपके। अब इमेजिन करिए, आप ऐसा फोटो बना लीजिए कि ये ट्रॉफी जो है पिघल रही है, गल रही है, टप 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 करके अपने आप, ये ऐसे ऐसे इसका स्टील की है, तो ये ट्रॉफी पूरी गल रही है, अपने आप गल रही है। ये देखो गल गल के यहाँ पे ऐसा नीचे नीचे ऐसा हो गया। बना लो अपने इसमें बगल में एक ड्राइंग छोटी सी, ऐसी गलती हुई ट्रॉफी टप 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 गिर रही है। छोटी सी ट्रॉफी बना लो जिसमें वो ऐसा मेल्ट टाइप की होके गिर रही है। अब ऐसे ही, मतलब बहुत आर्टिस्टिकली सुंदर नहीं होगी, हो सकता है ट्रॉफी का में अमरूद दिख रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि एट्रॉफी जैसे ही एग्जाम में ये वर्ड आएगा,
तो आपको ये टप 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 वाली ट्रॉफी दिखाई देगी। तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ सड़ना गलना ऐसा कुछ था इसका मीनिंग। यस, ए ट्रॉफी ऑफ कल्चरल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स, ऐसा कुछ सेंटेंस था इसका। ठीक है, तो आप वहां क्रैक कर दोगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, मेलिंगर। इट्स अ वर्ब। वर्ब है तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी मालूम होने चाहिए, ईडी ईडी लग जाता है उसके साथ। मेलिंगर्ड, ये ईडी लगा दिया मैंने। ठीक है, मेलिंगर, मेलिंगर्ड, मेलिंगर्ड। अब मेलिंगर का कोई मीनिंग बता सकता है क्या? नो वन हैज एन आइडिया? मैं बता देता हूं। टू प्रिटेंड, लिख लीजिए, टू प्रिटेंड इलनेस, मतलब बीमार होने का बहाना बना। दिस इज द मीनिंग, टू प्रिटेंड इलनेस, बीमार होने का बहाना बना। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल नहीं जाना होता, खासतौर पर ठंड के मौसम में नहा वहा के, तो वो कई बार बदमाशी करते हैं, मम्मी उठाती है, बोलते हैं मामा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा कुछ बच्चे करते हैं। तो आप बोल सकते हो दैट स्मॉल चाइल्ड इज मेलिंगरिंग। वर्ब है ना, तो मैं बोलूंगा दैट स्मॉल चाइल्ड इज मेलिंगरिंग। या इसको किसी भी तरह परफेक्ट टेंस में लिखना है तो मैं बोलूंगा ही हैड मेलिंगर्ड बिफोर द क्रिकेट मैच। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो मेलिंगर समझ में आ गया, यूसेज समझ में आ गया। अब लेकिन इसके मीनिंग याद करना है तो मैं क्रिएटिविटी यूज करके कुछ फनी पिक्चर इसकी बना देता हूं। कैसे बनाऊंगा? इसके प्रोनाउंसिएशन से मिलती जुलती। MALI, माली। GER, घर। तो विजुअलाइज करो अपने दिमाग में, आंख बंद कर लो चाहो तो, एक माली को विजुअलाइज करो। ठीक है, और एक घर है उसका छोटा सा, 1 BHK टाइप का, या 1 रूम है उसके पास। तो माली अपने घर में बैठा है और अपनी वाइफ के साथ बोल रहा है कि यार आज एक काम करता हूँ, साहब को बोल देता हूँ फोन करके कि बड़ा पेट में दर्द है। ठीक है, और आज छुट्टी ले लेते हैं और अपन दोनों आज चलते हैं सिनेमा। ठीक है, दैट इज हिज प्लान। तो माली इज डूइंग व्हाट? माली इज मेलिंगरिंग। सेंटेंस क्या हो गया? माली इज मेलिंगरिंग। या आप बोल सकते हो माली मेलिंगर्ड बिफोर हिज बॉस एंड सेड ही विल नॉट रिपोर्ट टू हिज ड्यूटी बिकॉज ही हैज स्टोमक एक। सो माली मेलिंगर्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, माली मेलिंगर्ड। अब आप सोचो, एग्जाम में वर्ड आ गया मेलिंगर, तो आपको एग्जाम हॉल में हंसी आ जाएगी। माली घर में पेट दर्द का बहाना करके बैठा है, माली इज मेलिंगरिंग। ठीक है, सैटरनिन। सैटरनिन का किसी को मीनिंग पता है क्या? नो वन हैज एन आइडिया? चलो आपको याद करा देते हैं ऐसा चुटकियों में। ठीक है, इसका मतलब होता है सैड, या डल, या ग्लूमी। मतलब एक बहुत ही अंधकारमय, दुखमय, या दुखी होना, ये होता है इसका मीनिंग सैटरनिन का। आप मेलिंगर के ब्रैकेट में नीचे कहीं लिख लीजिएगा माली और घर, ऐसा लिख लीजिए वहां पे, तो ही आपको याद रहेगा। MALI, माली को अंडरलाइन करिए, ऐसा हिंदी में लिख लीजिए माली, और यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखिए घर, है ना। माली घर में बैठा है पेट दर्द का बहाना करके, ऐसा करके। दिस इज द राइट वे ऑफ, लाइक भले आप घर जाके लिख लेना, माली घर में बैठा है पेट दर्द का बहाना करके, तो माली इज मेलिंगरिंग। अब सैटरनिन का मतलब होता है सैड, डल, ग्लूमी, एटसेट्रा। अब इसको याद करना है, कैसे करोगे? यहाँ पे आप देखो SATURN, सैटर्न दिख रहा है मुझे। सैटर्न आप जानते हो ना दोस्तों, मैं सैटर्न बना देता हूँ यहाँ पे। वो जो ऐसा रहता है ना, ये ऐसा वाला ग्रह होता है ना, शनि ग्रह बोलते हैं उसको। तो आप तो जानते हो दोस्तों, शनि यदि तुम्हारे राहु केतु के घर में आके बैठ जाए तो अरे क्या ही मिरेकल्स क्या कर लेगा, और कौन क्या कर लेगा, फिर तो गए काम से आप, आपका कैट नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तो आप देखो, एक शनि नहीं, नौ शनि बैठ गए हैं तुम्हारे राहु केतु के घर में आके। 9 लिखा हुआ है, 9, और ये है सैटर्न। तो 9 सैटर्न्स यदि आपके घर के, आपके लग गए पीछे, तो आप कहीं जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, कहीं कुछ करो, इलाज करो उसका।
यार मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत से आगे कोई चीज नहीं है। ठीक है। तो ये सब याद करने के लिए है, तो इसका मतलब वो 9 सैटर्न्स क्या करेंगे, आपके लाइफ को दुखी कर देंगे, सैड कर देंगे, डल कर देंगे, ग्लूमी कर देंगे। दिस इज द ट्रिक। 9 सैटर्न्स, 9 सैटर्न्स will make your life Saturnian। ये इसका सेंटेंस होएगा, 9 Saturns will make your life Saturnian, will make your life sad। चलो जल्दी से 2 वर्ड और कर लेते हैं। पॉलियाना का कोई आइडिया है? पॉलियाना, पॉलियाना का मतलब होता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक एटसेट्रा, ऐसा इसका मतलब होता है। तो भाई आप बोल सकते हो, आपको पता होगा यदि आप क्रिकेट थोड़ा फॉलो करते हो तो, अभी यूएसए की भी एक क्रिकेट की टीम बनी हुई है। उसमें सब डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स इस टाइप के हैं। ठीक है, अमेरिका के इंडियंस ही है मोस्टली उस टीम में भी, और कुछ में भी पाकिस्तानी भी हो सकते हैं एक आध। तो जो अमेरिका की टीम है ना, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। उन्होंने अच्छे अच्छे टीमों को हरा दिया इस साल। ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि कैसे हरा दिया। तो आप बोल सकते हो क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था वो पॉलियाना एटीट्यूड था, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एटीट्यूड था, इसीलिए वो बड़ी टीमों को भी हरा पाए। तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द पॉलियाना एटीट्यूड, द अमेरिकन क्रिकेट टीम कुड डिफीट माइटी पाकिस्तानीज ऑल्सो। ठीक है। अब पाकिस्तान की ये हालत हो गई है क्रिकेट में कि कैन यू बिलीव इट कि उसको ना क्वालिफाई करना पड़ेगा अगले वर्ल्ड कप के लिए, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वालिफायर खेलना मतलब ऐसे बेइज्जती टाइप की होती है कि अच्छा तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जब हार गए तो मतलब तुम उस टूर्नामेंट में नहीं पहुंचोगे, मतलब वो जो 6 8 12 जिसकी भी टीम होती है, तो उसमें ही नहीं पहुंचोगे, तो मतलब ये हालत हो जाएगी। तो इस वाले इसमें पाकिस्तान जो बाहर हो गया है, तो उसके करारा उसको तमाचा पड़ गया है कि अब वो अगले टूर्नामेंट में जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए वो क्वालिफाई करना पड़ेगा उसको, एक लोकल दूसरे टूर्नामेंट्स खेल खेल के। एनीवे anyway, तो अब पॉलियाना याद करना तो कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करिए एक सुंदर सा आइलैंड, जैसा वो हमारी पेंटिंग सीनरीज में होता है ना, डोरेमोन या ऐसे, उसमें बड़े सुंदर लगते हैं मेरे को पेड़ वेड़ या ऐसा एक। और एक उसमें एक आता है, वो एक ट्रेनें होती है ना, ट्रेन के इंजन बात करते रहते हैं, वो कौन सा है? थॉमस, हाँ। थॉमस देखा है क्या तुम लोगों ने? है ना। मुझे ना उस थॉमस का ना जो उसके जो सेटअप बताते हैं, जो ग्रीनरी सीनरी टाइप की रहती है, मुझे पता नहीं वो कैसे बनाया है उसको, क्योंकि वो एनिमेटेड भी नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल जैसा ही लगता है, और वहां पे इंजन चला के उन्होंने या तो फोटो शूट किया होगा। तो इमेजिन करो वो थॉमस में जो आती है सीनरी, पहाड़ वहाड़ ऐसे सुंदर सी जगह है, और उस सुंदर से एक आइलैंड में एक छोटी सी बच्ची रहती है, सुंदर सी व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनती है, बहुत प्यारी बातें करती है, उसका नाम है पॉली। ठीक है। तो क्या होता है कि उस आइलैंड पे कोई भी आदमी दुखी रहता है, तो उसको पता है कि पॉली बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, तो ये इसको वो मतलब ये जब आके बातें करती है, तो लोग पॉजिटिव फील करने लगते हैं, एंथुजियास्टिक हो जाते हैं लाइफ को लेके, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो अक्सर उस आइलैंड पे ये आवाजें सुनाई देती है, पॉली आना, पॉली आना, उसको सब बुलाते रहते हैं। ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड निकल के बन गया पॉलियाना। पॉलियाना, पॉलियाना। तो अब ये एग्जाम में आपके आ गया पॉलियाना, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा पॉलियाना क्यों बोलते थे, बिकॉज उसको पॉली के आने से लोग कैसा फील करते थे, पॉलियाना फील करते थे। पीपल यूज टू फील पॉलियाना। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, Polly used to make others feel Pollyanna about life. Polly used to make the villagers feel Pollyanna about life. याद रहेगा? हेलो एवरीवन, पॉलियाना याद रहेगा?
पॉली अना, ठीक है। बाकी अब इसको डे टू डे में यूज करो कि if India wants to win this 2020 World Cup, they need to carry Pollyanna attitude, optimistic and positive attitude, ऐसा करके कुछ। Nobody can crack cat without Pollyanna attitude, ऐसा कुछ भी आप यूज करो इसको लाइफ में। लास्ट वर्ड जो आज हम लर्न करेंगे, तो ये बेसिकली मैं क्या समझा रहा हूं पता है आपको, ये सब वर्ड्स लर्न करवा के कि आप एक गिवन सर्कमस्टेंसेस पे एक कोई भी ऐसा सीमिंगली नॉर्मल कोई भी वर्ड होगा तो उसमें क्रिएटिवली कुछ खुरापात करके उसको उसके उसके जो साउंड जैसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उससे रिलेटेड कुछ मस्ती करके उसमें कुछ याद कर दो। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू, ठीक है। जैसे इसमें इस सीरीज में लास्ट वर्ड है लैसीट्यूड। लैसीट्यूड एनी आइडिया क्या मतलब होता है? नो वन? ओके। लैसीट्यूड का मतलब होता है एक्ट ऑफ लेजीनेस। एक्ट ऑफ लेजीनेस मतलब आलस आना, दिस इज कॉल्ड लैसीट्यूड। अब भाई आलस आना ये लैसीट्यूड का मतलब है, अब इसको याद कैसे करोगे? तो याद करने के लिए मुझको यहाँ पे दिख रही है एक लस्सी, और मुझको दिख रहा है ट्यूड मतलब एटीट्यूड। तो लस्सी पीने के बाद कैसा एटीट्यूड हो जाता है? यदि आप एक तगड़ी लस्सी पी लो ना, अच्छी मक्खन वाली ऊपर से, और यदि बड़ा ग्लास हो, ठीक है, और ड्राई फ्रूट भी ढेर सारे डले हो, तो बॉस फिर खाना वाना नहीं खा सकते आप। ये मानते हो? मतलब आपको लगेगा भाई अब मैं बिस्तर पकड़ूंगा, बस नींद आ रही है मुझे, समथिंग लाइक दैट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब अच्छा हैवी खाते हैं तो ब्रेन का पूरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ चले जाता है स्टमक में, उसको तोड़ के वो पचाना चाहता है, तो इसीलिए हमको नींद आती है खाना खाने के बाद। और वैसे साइकोलॉजिस्ट और जो क्या ना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट नहीं सॉरी, जो क्या बोला चाहिए, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और स्पिरिचुअल गुरु है, उनका कहना है कि हमको खाना इतना खाना चाहिए कि पता ही ना लगे कि खाना खाया है। तो यदि वो ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब तो भाई ज्यादा खा लिया है। बट ठीक है, मन है, चंचल है, हमसे बोलता है वो ज्यादा खाने के लिए। एनीवे anyway, तो लैसीट्यूड समझ में आ गया, लस्सी एटीट्यूड। आप में से कोई इंदौर गया है क्या कभी? इंदौर, इंदौर नहीं? तो आप गए हो क्या इंदौर? आपने वो सरवटी बस स्टैंड देखा है क्या? नहीं देखा? तो आप कभी, आप में से कोई भी यदि इंदौर जाए तो मेरी इस एडवाइस को, ये आजकल फूड ब्लॉगर्स बहुत होते हैं इंस्टा पे कि ये खाओ वो खाओ, तो ऐसी एक मैं भी आपको फ्री में टिप्स दे देता हूँ। इंदौर यदि कभी आप जाते हो तो वहाँ पे बस स्टैंड के बाहर एक लस्सी की दुकान है, बहुत भीड़ रहती है उसमें, और वो एक लस्सी सर्व करता है। उस लस्सी का नाम है घमंडी लस्सी। क्या नाम है? घमंडी लस्सी, ठीक है। और वो बहुत फेमस है। और वो आप गलती से, मतलब आप एक हाफ तो मिलती नहीं, एक ही मिलती है, वो एक खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें इतना बटर और इतना ड्राई फ्रूट रहता है कि वो आप बहुत टॉप क्लास टेस्टी होती है, पर आप खत्म नहीं कर पाओगे। हाँ, या तो सुबह से खाना नहीं खाया तो आप डकार जाओगे, ठीक है। तो वो होती है, वो लस्सी पीने के बाद आपको नींद आ जाएगी, इस टाइप का। तो लैसीट्यूड याद हो गया, लैसीट्यूड लस्सी पीने के बाद घमंडी लस्सी पी लोगे तो आपको नींद वाला एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो उसका कॉम्पिटिटर खुल गया है सामने वहाँ इंदौर में। मैंने उसकी तो ट्राई नहीं करी, बहुत टाइम से गया भी नहीं इंदौर। तो उसका जो कॉम्पिटिटर है, उसने उसका ब्रांड का नाम पता है क्या रखा है? अभिमानी लस्सी। लुक लाइक ब्रांड टाइप का, वो तो घमंडी है तो ये अभिमानी है, ठीक है। अब पता नहीं एक और कोई एमबीए पास आउट आपके जैसा आ गया हो इतने सालों में, और उसने लिख दिया और सेल्फ एस्टीम लस्सी, ठीक है। एनीवे anyway, तो ये था बच्चों हमारा कि ये जो मैंने बताया ना, क्रिएट फनी पिक्चर। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने जो वोकेबलरी करी थी अपने कॉलेज डेज में, वो कैट के प्रिपरेशन के टाइम पूरी ऐसी करी थी, पर मैं जहां पे भी मौका मिलता था मैं बिल्कुल ये करता था, फनी पिक्चर क्रिएट करता था, ठीक है। तो इट मेक्स योर लर्निंग लिटिल जॉयफुल एंड इजी। और इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आप बहुत कम रिवीजन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बैठ जाता है, बिकॉज आपने उसके साथ विजुअलाइजेशन करके उसको जोड़ दिया, ठीक है। अब कल को मैं पूछूंगा एट्रोफी, तो आपको एट्रोफी, ट्रॉफी, पिघलती हुई ट्रॉफी, तो आप बोलोगे कुछ
सड़ना गड़ना ऐसा कुछ है क्या सर? यही है मीनिंग। मैं बोलूंगा पॉलियाना तो आप बोलोगे अच्छा पॉलियाना। हाँ, लोग एंथुसियास्टिक फील करते थे उसको। ठीक है, एग्जाम में आ गया मेलिंगर, तो माली घर पे बैठा हुआ दिखेगा आपको, बहाना बना रहा है पेट दर्द का। और क्या पढ़ा हमने आज? सैटरनिन। तो आपको रहेगा अच्छा सैटरनिन, 9 सैटर्न्स इफ दे आर बिहाइंड योर लाइफ, तो दे विल मेक यू फील सैटरनिन, दे विल मेक यू फील सैड। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये इसका फायदा है। और दूसरी चीज क्या है, आपको जब वोकेबलरी आप लर्न करते हो तो यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ जनरेटिंग 5 synonyms wherever possible. You should try to generate 5 synonyms for a given set of words. ठीक है? लेट्स से हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, चलो। uh, एक बहुत सिंपल सा वर्ड लिया मैंने, ब्यूटीफुल। इसके 5 सिनोनिम बताओ। प्रिटी। प्रिटी। वेरी गुड। गॉर्जियस। लिख लोगे क्या कॉपी में? लिखो लिखो। Don't have the attitude of lassitude. Okay, keep your pen busy. और बोलो, speak simple words also. अच्छा देखो, ब्यूटीफुल का मतलब हमेशा उसको ब्यूटी पर से उससे रिलेट मत करो। जैसे बोलते हैं ना कि सचिन हैज प्लेड अ ब्यूटीफुल शॉट, तो वहां पे ब्यूटीफुल का इक्वेटेड वो क्या बोलना चाह रहा है? गुड के टर्म्स में बोलना चाह रहा है, शानदार के टर्म्स में बोलना चाह रहा है, नॉट खूबसूरत उस सेंस में। तो ब्यूटीफुल को बहुत पेरोकियली नैरो माइंडेड उससे मत देखो, एक वाइड स्केल से देखो कि गुड, बेटर, बेस्ट, और उस सेंस में भी आप सिनोनिम मुझे बता सकते हो। तो बताओ। सॉरी? मेलोडियस मैं बिल्कुल लूंगा, वेरी गुड। मेलोडियस। और जनरेट करो, बताओ। युक्ता बताइए। ब्यूटीफुल के सिनोनिम, गुड के सिनोनिम बता दो मतलब। सॉरी? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। एक मिनट, एक एक करके ना। अमेजिंग, ऑसम, और क्या बोला आपने? ओके, बोलो बोलो। अमेजिंग, ऑसम के सिनोनिम्स बताओ। गुड के सिनोनिम्स बताओ। स्टनिंग, वेरी गुड। ओके, हु सेड इट? वेरी गुड। डेज़लिंग, हु सेड इट? वेरी गुड। अपीलिंग, वेरी गुड। नाउ यू आर कैचिंग अप। मैं यही चाहता हूं, अपीलिंग। नाउ यू गॉट इट। क्योंकि आप देखो, सिनोनिम्स का मतलब वो नहीं होता वर्ड्स हैविंग एग्जैक्ट मीनिंग, उस शेड्स के मीनिंग, मतलब उससे मिलते जुलते सारे ही चलेंगे। सारी। वेरी वेरी गुड इंडीड। हार्ट वार्मिंग। अब हार्ट वार्मिंग है तो हार्ट टचिंग भी हो सकता है, चार्मिंग भी हो सकता है, बिल्कुल। अब हार्ट टचिंग भी लिख सकता हूं मैं। हार्ट टचिंग। चार्मिंग बिल्कुल अच्छा वर्ड है। नोट भी करते चलो, मजा आएगा। आप नोट करो ना, आप ये मत सोचो कि अरे ये तो मुझे पता है, इसमें क्या करना। करो तो सही, करो तो सही। वेरी गुड। मेस्मराइजिंग, वेरी गुड। अच्छा देखो, ऑल दीज वर्ड्स we have a particular type of meaning, but they all are synonymous. For example, mesmerizing का जो exact meaning होता है, ठीक है, वो होता है, हिंदी में एक वर्ड होता है ना, मंत्र मुग्ध कर देना। मंत्र मुग्ध कर देना मतलब कि स्पेल बाउंडिंग। एक वर्ड होता है, इसको भी लिख लीजिए, स्पेल बाउंडिंग। हाँ, टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है थोड़ी गुदगुदी कर देना, मतलब अट्रैक्ट करना। हाँ, इसका एक सिनोनिम अट्रैक्टिव भी हो सकता है, यस। ठीक है। स्पेल बाउंडिंग देखो, स्पेल का मतलब जानते हो? स्पेल का मतलब होता है मंत्र। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, ही वॉज कास्टिंग ए स्पेल। भाई वो कुछ जादू टोना कर रहा था, ही वॉज कास्टिंग ए स्पेल ऑन मी।
ठीक है, बाय थ्रोइंग सम नींबू एंड मिर्ची, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपको मैं एक्चुअली ये समझाना चाह रहा हूँ स्पेल का मतलब, ये स्पेल बाउंडिंग जो वर्ड आया ये कहां से आया। तो स्पेल यानी कि मंत्र, बाउंड मतलब बांध देना उससे। तो इसी ने कुछ जादू कर दिया मेरे पे, और ताकि मैं अब ये जो बोलेगा मैं वही करूंगा टाइप्स, ठीक है। तो उसने मुझे काबू में कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड स्पेल बाउंडिंग। अब स्पेल बाउंडिंग एक तो वो लिटरल मीनिंग हो गया। देखो यहाँ पे 11 गोल्डन रूल्स में एक रूल है कि लर्न द डिनोटेशन एंड कनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब बच्चों होता है डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, इसको लिख लीजिए। लिटरल मीनिंग मतलब उसका लिटरेचर वाइज मीनिंग। और कॉनोटेशन का मतलब होता है कंटेक्चुअल मीनिंग। कंटेक्चुअल मीनिंग का मतलब होता है फिगरेटिव मीनिंग। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। दो तरह की मीनिंग होते हैं किसी भी वर्ड के, या तो लिटरल मीनिंग हो सकता है या फिगरेटिव मीनिंग हो सकता है। लिटरल मीनिंग बेटा प्रणव नोट कर लो, ये 7th पॉइंट में समझा रहा हूं अभी, कि लर्न द डिनोटेशन। डिनोटेशन मतलब डिक्शनरी मीनिंग, मतलब लिटरल मीनिंग उसका वास्तविक मीनिंग। और लर्न द कॉनोटेशन का मतलब है कंटेक्चुअल मीनिंग। कंटेक्चुअल मतलब फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है। फिगरेटिव का मतलब दोस्तों होता है कि किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज होने वाला मीनिंग। जैसे मैं बताता हूं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे ये एक वर्ड है एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोड का जो लिटरल मीनिंग होगा इसको लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है फूटना, फूटना या फटना। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बॉम्ब फूट गया। अब इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होता है ना, उसका मतलब होता है गुस्सा दिखाना, गुस्सा। तो माय फादर एक्सप्लोडेड एट मी मतलब मेरे पापा मुझ पे नाराज हो गए। तो मेरे पापा फट गए फूट गए नहीं, मेरे पापा मुझ पे नाराज हो गए। माय फादर एक्सप्लोडेड एट मी, ठीक है। समझ में आ गया फिगरेटिव और लिटरल। हेलो एवरीवन, ठीक है। जैसे आ, मेरे पापा ने मुझे तमाचा मारा, तो ये लिटरल मीनिंग है, गाल पे तमाचा मारा। और यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक तमाचे की तरह था, तो हम बोल सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया। तो मतलब नॉट लिटरली कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग गई तमाचा मारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, मतलब उसका फिगरेटिवली मतलब है कि अच्छा सबक सिखाया, बहुत अच्छा जजमेंट दिया, पनिशमेंट दी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड लिटरल एंड फिगरेटिव? मैं कल की क्लास में, क्योंकि मेरी टीचिंग में बहुत यूज होने वाला है लिटरल फिगरेटिव, लिटरल फिगरेटिव, लिटरल फिगरेटिव, मैं बहुत यूज करता हूँ, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कल को बोलूंगा लिटरली यूज हो रहा है, फिगरेटिवली यूज हो रहा है, समझ जाओगे किस सेंस में। गेटिंग इट? तो वो वाली बात है। तो कास्टिंग, स्पेल बाउंडिंग का मतलब है स्पेल बाउंड कर देना, मतलब लिटरल। लेकिन फिगरेटिवली स्पेल बाउंडिंग का मतलब है शानदार। व्हाट अ स्पेल बाउंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। कोई सिंगर है, क्रिकेटर है, तो उसके परफॉर्मेंस को हम तारीफ करने के लिए बोल सकते हैं कि मंत्र मुक्त कर दिया भाई, मैं तो पागल हो गया। तो मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेल बाउंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, वेरी गुड, उसको प्रोनाउंसिएशन होता है उसका कैरिज्मेटिक। ये अक्सर आपको ये प्रॉब्लम जाएगी बच्चों, जो वर्ड सी एच या सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा ये चैरिज्मेटिक है, कैरिज्मेटिक है या शेरिज्मेटिक है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ऐसा वर्ड लिख देता हूं, तो ये समझ में नहीं आएगा चाइमेरा चिमेरा पढ़ूं, ये शाइमेरा पढ़ूं या काइमेरा पढ़ूं, ठीक है। तो ये है काइमेरा। काइमेरा का मतलब होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चलो, तो इतना ही काफी है वैसे तो। हम ब्यूटीफुल और गुड के सिनोनिम लिखने लग जाएं तो यहाँ पे पूरे मतलब रात हो जाएगी, यानी 100-200 सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसके एंटोनिम भी कुछ जनरेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 5-6 एंटोनिम। ब्यूटीफुल या गुड के ऑपोजिट आइडियाज बताइए। अगली, बैड,
हाँ, आईसोर आप बोल सकते हो। एक वर्ड होता है आईसोर, इसका मतलब आंखों की किरकिरी। तो मतलब ही वॉज एन आईसोर फॉर इन माई क्लास। जैसे मान लो कोई खराब स्टूडेंट है जो परेशान करता है, तो मैं बोल सकता हूँ दैट स्टूडेंट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड एज एन आईसोर। आंखों की किरकिरी एक हिंदी में वर्ड होता है। अच्छा देखो, आपको इसके एंटोनिम देखने, तो आप इनके एंटोनिम्स देखिए यहाँ पे जो, जैसे अपीलिंग है, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? अनअपीलिंग। वेरी गुड। डिसगस्टिंग। अब देखो कुछ सिंपल वर्ड आपको बताता हूं कैसे जनरेट किए जाते हैं। ये हो जाएगा अनएक्सेप्टेबल। समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल हैज टू बी बैड। ठीक है। अनअपीलिंग, अनएक्सेप्टेबल, अनप्लेजेंट, और इधर प्लेजेंट आ जाएगा। अब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग वर्ड दें तो डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है। डेस्पिकेबल, हाँ। यस, वेरी गुड, बिल्कुल। कैकेफोनस। देखो, जैसे मेलोडियस मतलब बहुत मधुर। कैकेफोनस में कैक्टस वाला रूट आता है ना, कैक, CAC, कैक। कैक रूट मतलब चुभने वाला। तो ऐसी आवाज जो कानों को चुभती है, दैट इज कैकेफोनस। फोनस मतलब साउंड, कैक मतलब कर्कश, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और ब्यूटीफुल का उल्टा जो है, कोई भी वर्ड जो खराब के सेंस में होता है ना, जैसे एबिस्मल फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है। एबिस्मल, एबिस्मल मतलब पैथेटिक, बैड। एक वर्ड होता है पैथेटिक। ठीक है। समथिंग लाइक दैट, दैट्स गुड इनफ। तो आपको कोशिश करनी है कि एक हैबिट डालना है कि जब भी कोई वर्ड लर्न करते हो या कॉपी में लिखते हो तो 5 सिनोनिम्स लिखो। एंटोनिम्स मत लिखो आप। ये तो मैं आपको जस्ट एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए बता रहा था। आपको लर्न भी सिर्फ सिनोनिम ही करना है, एंटोनिम लर्न नहीं करना है। सिर्फ सिनोनिम ही करना है, बिकॉज वो सिनोनिम भी किसी ना किसी वर्ड का तो एंटोनिम है ही। क्योंकि अदरवाइज वो लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता आपके लिए। ठीक है। तो आपका लर्निंग मेथड ये होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न करो, उसका मीनिंग देख लो, और उसके कम से कम 3 से 5 सिनोनिम्स लिख लो, लर्न कर लो, और उसको रेगुलर रिवाइज भी करो। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, व्हेन यू लर्न मल्टीपल वर्ड्स, दे हेल्प यू डेवलप हुक्स, एंकर्स एंड नेटवर्क ऑफ वर्ड्स। एक वो अंगूर के गुच्छे की तरह हो जाता है। तो जैसे एक ब्यूटीफुल का एक गुच्छा हो गया, इसमें मेस्मराइजिंग, स्टनिंग, गॉर्जियस, प्लीजिंग, अपीलिंग, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, ये सब वर्ड्स उसके गुच्छे की तरह लटके हुए हैं। तो आप रेगुलर इनको रिवाइज करोगे तो वो आपके एक एक न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाएंगे, एकदम से एक वर्ड के साथ 5 7 10 वर्ड एकदम कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि स्टैंड अलोन यदि कोई वर्ड आता है, तो उसको आपको डिग करके डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ में ही आपका याद हो गया। इट इज लाइक कि इंडिविजुअली 10 वर्ड को याद करने में कितनी मेहनत लगेगी, और यदि आपने 10 सिनोनिम याद कर ली है, तो आपने 1000% आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि आपने 10 वर्ड याद किए और हर 10 के एक एक के 5 5 कर लिए, तो इफेक्टिवली आपने 10 वर्ड याद करने की मेहनत में 50 वर्ड याद कर लिए। और वैसे ही सोच के देखो, 500 ही याद की है, तो 2500 याद कर लिया आप। ये मैंने एक्चुअली किया है ऐसा अपने कॉलेज डेज में, तो मैं आपको बता सकता हूँ सिनोनिम। और अदरवाइज फिर वो स्पोकन और रिटर्न में तो और क्या ही कहने, उसके फायदे कितने हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि आप स्पॉन्टेनियसली कहीं पे भी यू कैन प्ले विथ वर्ड्स।
ठीक है, वापस से स्लाइड पे आ जाते हैं। तो 5 सिनोनिम्स क्या मैंने बता दिया। ऑब्जर्व टोन्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कई वर्ड्स जो है नेगेटिव ही रहते हैं, कई वर्ड पॉजिटिव ही रहते हैं, कई वर्ड न्यूट्रल होते हैं। जैसे एक वर्ड यहाँ पे है, 3 वर्ड मैंने लिखे हैं, मॉब, असेंबली, क्राउड। अब मॉब का मतलब होता है एसेंशियली नेगेटिव कंटेक्स्ट में गुस्साई भीड़, या पथराव करने वाली भीड़, या दंगा फसाद करने वाली भीड़। तो मॉब इज एसेंशियली ए नेगेटिव वर्ड। तो आई विल नेवर यूज दिस वर्ड इन पॉजिटिव कंटेक्स्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, कई बार, जैसे एक बार कई काफी पुरानी बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास एडमिशन लेने एमपी एंट्रेंस में, और बोले कि सर हम लोग मॉब में यदि एडमिशन लेंगे तो आप कितना डिस्काउंट दोगे मॉब में। तो वो उनको बोलना ही चाहिए था, हम लोग यदि ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आप कितना डिस्काउंट दोगे, क्योंकि मॉब में बोलने का वहां कंटेक्स्ट नहीं बैठेगा। क्योंकि मॉब में तो तब बोला जाता है कि जैसे मैं बोलूंगा कि when the mob came, the shopkeeper they shut their shutters and they put the lock, because mob was setting buses on fire, mob was pelting stones on the cars etc, they were breaking the windows etc etc etc। तो mob का मतलब दंगा फसाद करने वाली भीड़, तो वो यहाँ एडमिशन लेने के कंटेक्स्ट में नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो mob नेगेटिव है, असेंबली एसेंशियली पॉजिटिव वर्ड। जैसे हम बोल सकते हैं असेंबली ऑफ डेलीगेट्स। क्राउड एक न्यूट्रल वर्ड है, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस में। मैं बोल सकता हूँ कि अरे यार रायपुर का क्राउड बड़ा अच्छा है, बड़ा हॉस्पिटेबल है, सीधे साधे अच्छे लोग हैं। अरे यार वहाँ का क्राउड बड़ा बेकार था, या उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत या मैं बोलता हूँ कि मैं वहाँ पे, कोई मान लो फिल्म एक्टर है तो वो बोलेगा कि मैं वहाँ पे फला जगह गया था शो करने, तो वहाँ पे यार लोगों ने मेरे को केले के छिलके से मारा वगैरह वगैरह, तो क्राउड बड़ा खराब था। तो क्राउड बड़ा खराब था, क्राउड बड़ा अच्छा था, मतलब क्राउड अच्छा बुरा दोनों ही हो सकता है। तो ये एक न्यूट्रल वर्ड है। जबकि असेंबली आप किसी नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि असेंबली ऑफ टेररिस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दीज किलिंग्स। रियासी में जम्मू के पास जो बस में मारा गया लोगों को, जो वैष्णव देवी से आ रहे थे, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि असेंबली ऑफ टेररिस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द रियासी किलिंग्स। टेररिस्ट के ग्रुप को आप असेंबली नहीं बोल सकते, समझ गया ना। आप चाहो तो मॉब बोल सकते हो, पर आप असेंबली बोलोगे, असेंबली ऑफ टीचर्स, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में ही बोलोगे आप। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा कहीं नेगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं होता, बट आपको ये केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा यूसेजेस में, या आप जब वर्ड्स को लर्न करोगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा। डिक्शनरी डिक करोगे तो उसमें लिखा होगा यूज्ड इन डेरोगेटरी सेंस, यूज्ड इन डिसअप्रूविंग सेंस, तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। समझ में आ गया। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये तो हमने लर्न कर लिया, डिनोटेशन कनोटेशन मैंने आपको बता दिया। गेट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कोशिश करिए कि सही प्रोनाउंसिएशन आप कर पाए वर्ड्स की। उसके लिए आपके पास कोई भी वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन जानना है तो आप गूगल में टाइप करिए और उसको साउंड पे प्रेस करके देख लीजिए। लेकिन रिमेंबर, you have to understand the correct pronunciation, but you don't have to copy the accent. Accent has to be Indian, you know, like for example, uh, अब ये एक सेंटेंस है। अब भाई हमको पता है, अब मान लो जिसको कैन, कोई लोग केन बोलते हैं। मैं भोपाल साइड को बिलोंग, मैं मतलब मेरा जो बचपन वगैरह है सब भोपाल में पला बड़ा हूँ मैं। तो वह भोपाल साइड पे, इंदौर साइड पे लोग ना ए की मात्रा को क्या कर देते हैं, ए की मात्रा बना देते हैं, चाहे वो कितने भी कॉन्वेंट स्कूल से क्यों ना हो। वो इंदौर का मालवा रीजन का है तो वो ए को ए कर देगा, जैसे पैर में चोट लग गई नहीं बोलेगा, पैर में चोट लग गई। आई कैन, आई कैन नहीं बोल पाएगा वो, आई कैन डू इट। ठीक है अब वो इंदौरी मिट्टी का उसके ऊपर वो है,
असर कि वो ऐसे ही बोलेगा, जैसे नहीं बोलेगा, जैसे। जैसे मैं बोल रहा था, मैन इन मे, जैसे, जैसे। तो मतलब वो एक ही मात्रा ही लगा देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसका करंट प्रोनाउंसिएशन होगा कैन, लेकिन आपको एक्सेंट अमेरिकन नहीं लगेगा, कैन ऐसा नहीं बोलना है, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आई कैन एंजॉय इट, आपको ऐसा नहीं बोलना, आई कैन डू इट बोलना है, रादर देन आई कैन एंजॉय इट, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पे नो डाउन 5 watts daily ऐसा हो जाएगा वो। तो आप उसकी एक्सेंट मत लीजिए, पर आप उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ले लीजिए, ठीक है। दैट इज द थिंग। प्रैक्टिस मेकिंग सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे डिफिकल्ट है इस पूरे प्रोसेस में। आप बाकी चीजें कर लोगे, वर्ड याद कर लोगे, सब हो जाएगा, बट टू बी एबल टू राइट सेंटेंसेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। बट यू शुड डू इट regardless of whether you make right or wrong sentences, you should try making it। आप डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस यूज करिए, जो भी वर्ड्स लर्न करते हो आप इमीडिएटली उसको यूज करिए, अपने मम्मी पापा से बोलिए, यूज करिए, उनको नहीं समझ में आता है तो भी इंग्लिश में बोलिए, ठीक है, फिर हिंदी में कन्वर्ट करके बता दीजिए। डिस्कस विद फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना द मोर यू विल शेयर योर वोकैबुलरी नॉलेज विद अदर्स, मोर यू विल लर्न, because knowledge is the only asset that multiplies the more you share. Rest all other assets will decline, will depreciate if you will share with others। आपके पास मान लो स्कूटी है, आप अपने दोस्त के साथ शेयर करके देखिए, हो सकता है पेट्रोल खत्म करके ले आएगा, या हो सकता है पंचर करके लाके रख देगा। मोबाइल शेयर करिए, बैलेंस उड़ा देगा, डेटा खत्म कर देगा। लेकिन आप नॉलेज शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, फायदा आपका है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उसका फायदा है कि नहीं है, पक्का नहीं, आपका फायदा तो है। तो आप जो भी यहाँ पढ़ते हो मिरेकल्स में, आप तो किसी को ट्यूशन पढ़ाने लग जाओ, उससे अच्छा कुछ नहीं है, लर्निंग आपकी होगी। आप जिस दिन यहाँ शॉर्टकट, कल आपका मैथ्स का सेशन है शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर, तो वो सब किसी को जाके बता दो, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं उसमें बहुत सारी, ठीक है, या आप जो भी चीज़ है, तो आप यदि किसी और को पढ़ाओगे, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप वोकैबुलरी चाहते हो कि याद हो जाए जल्दी, तो आज घर जाके अपने मम्मी पापा से डिस्कस करो, आप बताओ पापा सैटर्निंग का मतलब, तो नहीं बता पाएंगे हो सकता है, तो आप उनको ये ट्रिक बता देना, मीनिंग बता देना, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप जितना शेयर करोगे उतना आपको याद रहेगा, क्योंकि डिस्कशन करने से याद होता है, एक इवेंट क्रिएट होती है उससे, एक माहौल क्रिएट होता है, और वो याद रहती, कहानियां याद रहती हैं। वर्ड के मीनिंग याद नहीं रहते, तो आप किसी को बताओगे, तो बताने के प्रोसेस में वो साउंड आपके कानों में भी जा रहा है, तो आपको वो याद हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमेना है कि कोई भी एक वर्ड आपने आज 1 तारीख है मान लो, आज जनवरी 1 है मान लेते हैं, तो जब तक के आप 15 जनवरी तक लगातार 15 डेज आप इसको रिवाइज नहीं करोगे, वो याद नहीं होगा। तो आपको डेली वो वर्ड की शक्ल देखनी है और उसको रिवाइज कर लेना है। हाँ, 16th डे से यू कैन अफोर्ड टू अवॉइड रिवीजन फॉर दोज वर्ड्स, ठीक है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, 2 से 3 या 4 5 वर्ड नोट कर रहे हैं। वो कैब हाउस कम से कम आधी आपको डेली कोशिश करना है लर्न करने की। अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, मैंने आज उसको बताया आपको इंपॉर्टेंस। क्रिएट फनी पिक्चर वेरेवर इट इज पॉसिबल। ट्राई जनरेटिंग 5 synonyms फॉर द वर्ड्स वेरेवर यू आर लर्निंग, वेरेवर यू आर लर्निंग। ऑब्जर्व टोन्स ऑफ वर्ड्स, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको आइडेंटिफाई द एरर वो बोलेगा, या रॉन्ग यूसेज फाइंड आउट करना है। तो वहां पे लिख दिया कि मॉब was waiting outside in the miracles office for taking admission and they were demanding the group discount because they were in mob। तो यहाँ पे यही गलती हो जाएगी, मॉब नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन आ गया कि असेंबली ऑफ टेररिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड रियासी किलिंग्स, आइडेंटिफाई द एरर। तो एरर यही है कि असेंबली नहीं आएगा वहां पे, समझ गए ना आप। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मेकिंग सेंटेंसेस, डिस्कशन विद फ्रेंड्स फैमिली, एंड रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जैसे मैथ्स में बोला जाता है
कि there is only three secret formula that works in maths: practice, practice, practice. In vocabulary, I would say three word formula: revise, revise and revise. रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, आरसी में अच्छा स्कोर करना है, रीड, रीड एंड रीड. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आई ट्राई टू कवर दिस टॉपिक इन अ वेरी वेरी होलिस्टिक मैनर. मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं अगले 40 साल के लिए तैयार कर पाऊं. ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, और आपको मिरेकल के अगले 1 साल की ट्रेनिंग में भले ही आपके प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में रीजनिंग, मैथ्स, ये DILR काम नहीं आएगा, पर आपके डे टू डे लाइफ में आज से ही, अभी से ही और फ्यूचर में हमेशा वोकैबुलरी और इंग्लिश में मैं जो भी पढ़ाऊंगा, चाहे ग्रामर, वोकैबुलरीज, हर चीज आपकी लाइफ स्किल्स है ना. इट इज जस्ट लाइफ स्किल्स. ठीक है बेटा, इसमें आप लोग नाम और साइन कर दीजिए बस, दैट्स इट. हाँ, बस सेंटर में नाम लिख दीजिए, सेंटर वाले कॉलम में, और राइट साइड में साइन कर दीजिए उसके. कल आपका मैथ्स का सेशन है, और उसके बाद पूरे मंडे से लेके संडे तक का आपका टाइम टेबल बन जाएगा, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा मंडे को. टाइमिंग फॉर टुमारो इज 11:30 AM. यूजुअली संडेज जो है 11 AM के आसपास ही क्लास स्टार्ट होती है. आगे चल के जुलाई से ये 2 क्लास हो जाएगी संडे को. तो यू विल हैव 2 क्लासेस ऑन एवरी संडे, 11 to 2:30 या 2 PM टाइप्स. I? No, 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 no. I won't take maths. Nitin sir will take maths. Parmeshwar sir is also there. Two faculty members are there. Both of them, they are complete all-rounders. Parmeshwar sir भी maths, reasoning, DI लेते हैं. नितिन सर भी maths, reasoning, DI लेते हैं. तो आपको बहुत मजा आएगा. Rest assured. तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो. उसके लिए पहले तो न्यूज़पेपर लगवा लो. ठीक है, दैनिक भास्कर आता है तो उसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लो. ये बहुत बहुत सस्ती डील है. टाइम्स ऑफ इंडिया का 1 महीने का बिल मेरे ख्याल से 150-200 रुपये आता है, ज़्यादा नहीं आता. ठीक है, उतना तो आप रद्दी बेचोगे तो कुछ 40-50 रुपए की तो रद्दी बन जाएगी उसकी. ठीक है, तो दैट्स ऑल बच्चों. और एक और चीज़ करो कि ट्राई ट्राई स्पीकिंग विथ योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश. ट्राई कम्युनिकेटिंग in English so that you develop that fluency, you develop that practice, and watch some good YouTube channels. There is one YouTube channel, Think School. You should watch that channel. And in Hindi, you should watch Prashant Dhawan Study IQ. That is for general awareness. And for developing excellent command over English communication, you should watch Arnab Goswami, Republic TV, every night 9 p.m. If you don't watch TV, then you can watch him on YouTube. Watching him speak is absolutely a pure delight. I mean, he is a phenomenal communicator. And you will learn that masala way of communicating. Because यहाँ पे हमको कोई लिटरेचर वाइज अच्छा नहीं. हमको यार धंधा वाला बंदा बनना है. मतलब बोलो, ऐसा बोलो, तोड़ फोड़ बोलो, मतलब मजा आ जाए, लोग बिल्कुल पागल हो जाए कि यार ये क्या बोलता है. तो वैसा आपको बहुत एम्फेटिक और बहुत ही स्पाइसी इंग्लिश बोलनी है. तो यू शुड वॉच अर्नब गोस्वामी. तो बहुत ह्यूमर ऐड करता है वो. मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमर ऐड करता है उसमें. मतलब वो जो बाकी लोग आते हैं वहां पे डिबेट होती है, तो आप देखना वो कैसे उतारता है सबकी. मतलब नो बडी कैन डोमिनेट दैट गाय. तो उसके बहुत सारे मीम और ये सब मतलब TVF वालों ने बहुत उसकी मिमिक्री कर करके ऐसे बहुत बनाए भी हैं. बहुत हिलेरियस प्रोग्राम्स बने अर्नब गोस्वामी के ऊपर. बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी अपने कॉलेज डेज में आपकी उम्र में ना ये न्यूज़ एंकर्स को देख देख के, इनकी मिमिक्री कर करके आई हैव डेवलप्ड माई इंग्लिश. ठीक है, फिर एक टाइम पे आके आपकी एक ओरिजिनलिटी एक बन जाती है. शुरू शुरू में एक्टिंग करो, कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ठीक है, in my I will later on, like in times to come,
I will conduct your communication skills workshops also. So I will teach you the excellent traits how to become a good orator. Well, I'll talk about voice modulation, pitch, and I'll make you stand here on stage and deliver a presentation. Okay. So there you will have hands-on experience. How stage handling also is a sort of experience. Okay. So all of these things are in store for you. Okay. Stay tuned. Stay excited. Take care. Bye. All the best. See you tomorrow at 11:30.